Friends, today I will teach you Chapter 6 Life Process Part 2. So, last we had completed up to here breakdown of glucose by the various pathways. So, let us go ahead. ATP. What is ATP? ATP is the energy currency for the most cellular process. The energy released during the process of respiration is used to make ATP molecule. So, how ATP is made? ATP is made from two substances, ADP plus P. What is ADP? Adenosine diphosphate plus phosphate is equals to adenosine triphosphate. It is done by the energy. When the energy comes in the contact of ADP plus P, it will make ATP. Endothermic process in the cell then use this ATP to drive the reaction. When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kg per mole is released. मतलब जब एटीपी ब्रेक डाउन होकर वाटर मॉलिक्यूल बनाता है तब उसके साथ एनर्जी रिलीज़ होती है। वो एनर्जी कितनी रिलीज़ होती है? तो 30.5 किलोग्राम पर मोल उतनी एनर्जी रिलीज़ होती है। Think how a battery can provide energy for many different kinds of uses. It can be it can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy, and so on. Similarly, ATP can be used in the cells for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nerves impulses, and many other activities. तो एटीपी किस किस के लिए यूज़ होता है? एटीपी सेल्स को एटीपी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। बाद में प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स और नर्व इम्पल्स को कंडक्शन कराता है और बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ करता है। Since the aerobic respiration pathway depend on oxygen, aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. We have seen that plant exchange gases through the stomata, and the large intercellular spaces ensure that all cells are in the contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion. So now let us do activity 6.6. Observe the fish in an aquarium. They open and close their mouth and the gill slit. Behind their eyes also open and close. Are the timing of the opening and closing of a mouth and gill slit coordinates in some manner? Count the number of times the fish opens and closes its mouth in a minute. Compare this to the number of times you breathe in and out in a minute. मतलब इस एक्टिविटी में ऐसा कह रहे हैं कि जब भी आप कोई एक्वेरियम देखो तो आप उसके अंदर जो मछली होती है वो देखना उसको केयरफुली और उसके बाद वो कितनी बार माउथ और वो क्लोज करती है वो सब आप नोटिस करना और बाद में वो एक जगह पे नोट डाउन कर देना। मोर टू नो यूजिंग टोबैको डायरेक्टली or any product of tobacco in the form of cigar, cigarettes, bidis, hookah, gutka, etc. is harmful. Use of tobacco most commonly affect the tongue, lungs, heart and liver. Smokeless tobacco is also a major risk factor for heart attack, strokes, pulmonary disease and several forms of career. There is high incidence of oral cancer in India due to chewing of tobacco in the form of gutka. Stay healthy,
जस्ट से नो टू टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे ऐसे कहा है कि जो टोबैको यूज़ करते हैं और सिगार, सिगरेट्स, बीडीज, हुक्कास, गुटखा एक्सेट्रा जब जो पीते हैं उससे उनके हार्ट पर असर पड़ता है, टंग, लंग्स और लीवर पे भी असर पड़ता है और उसके कारण बहुत रिस्क होता है हार्ट अटैक आने का, स्ट्रोक्स आने का या पल्मोनरी डिसीज़ आने का। तो जो भी वो स्मोकलेस बीड़ी या टोबैको वो भी मेजर रिस्क होता है। इसलिए जस्ट से नो टू टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट। Terrestrial organisms terrestrial organisms terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by the different organs in the different animal. All these organs have the structure that increase the surface area which is in the contact with the ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। मतलब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं पर वो एटमॉस्फेयर में नहीं, वो एटमॉस्फेयर में रेस्पिरेशन के थ्रू करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स। मतलब ये ऑक्सीजन अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन से यूज़ करते हैं इन डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग ऑर्गन से रेस्पायर करते हैं। ऑल दिस ऑर्गन्स हैव स्ट्रक्चर एंड इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। ये सारे जो ऑर्गन्स है वो स्ट्रक्चर वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, मतलब वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। दिस इज़ इन द कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। और ये ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में होते हैं हमेशा। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface is very fine and delicate. In order to protect the surface, it is usually placed within the body. अगर ये एक्सचेंज और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज बाहर कहीं पे होता तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। वो इसलिए वो सब कुछ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमारी बॉडी के अंदर होता है। In human beings, the air is taken through the body, the nostrils. The air passing through the nostril is fitted by the fine hair that line the passage. The passage is also lined with mucus, which help in process. From here, the air passes through the throat into the lungs. Rings of cartilage area present in throat. This ensure that the air passage does not collapse. So guys, let us see the structure of respiration. So guys, you can see that here there is a nasal passage. Nasal passage वहाँ पे एक दो होल होते हैं जिसको आप नोस्ट्रिल्स कहते हो। वो नोस्ट्रिल से एयर अंदर और स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो एयर को पास करता है और जो भी डस्ट मॉलिक्यूल होता है वो वहीं पे चिपक जाता है। फिर नोस्ट्रिल से एयर ट्रैक तक नोस्ट्रिल से और वहाँ से फिर जाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से वो जाता है ब्रोंकियोल्स। मतलब जो छोटी ब्रोंकाई एक ऐसा है जो दो ब्रोंकियल्स का मिलके बनाता है। दो ब्रोंकियल्स कौन से तो ये जो दो वो उसको कहते हैं ब्रोंकियल्स। और ये देखो आपको साइड में दिया है ये वाला ब्रोंकियल्स।
वो ब्रोंकियोल्स है वो जब कनेक्टेड होते हैं, मतलब ऐसे एक और दूसरा भी ऐसे ऐसे जाता है, तो इस एरिया को कहते हैं ब्रोंकाई, और ये एरिया को कहते हैं ब्रोंकियोल्स। वैसे ही ब्रोंकियोल्स से आगे जाके वो जाता है एल्वियोलस। ये एल्वियोलस भी ब्रोंकाई की तरह ऐसे ही अलग अलग होते हैं। एल्वियोलस से एल्वियोलाई मतलब सिंगल, एल्वियोलाई सिंगुलर होता है और एल्वियोलस प्लूरल। फिर वो एल्वियोलाई से एक एल्वियोलाई के आगे ब्लड कैपिलरी होती है। वहाँ से स्मॉल सो गाइस, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती है जो 2 कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। वो 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से वो एल्वियोलाई से वो वापस जाता है नेसल पैसेज से आउट, और जो होता है और वो वो 4 ऑक्सीजन O2 कैरी करके वो वापस जाता है। वो वापस कहाँ पे जाता है? तो सीधा हार्ट तक जाता है। वो हार्ट तक जाके वो कैपिलरीज हार्ट तक जाती है, और हार्ट में राइट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। मतलब जो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हार्ट में से जाके पूरी बॉडी ट्रैवल करके फिर वहाँ से राइट एट्रियम में जाके राइट वेंट्रिकल से वापस जाता है लंग्स। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे करके ऐसे पूरी ये ट्रांसपिरेशन है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। सो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही वो हार्ट है जो हार्ट होता है वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाता है। ऐसे ही ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है और हम रेस्पिरेशन करते हैं, और ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि स्पीड में गए और वापस भी आए। और जब हम एयर ब्रीथ इन करते हैं तब जब हम एयर ब्रीथ करते हैं तब ये एल्वियोलाई बलून की तरह फूल जाते हैं,
और बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण ये लंग्स बड़े होते हैं और ये डायफ्राम वो उसका शेप चेंज होता है और वो डायफ्राम वो लंग को वापस शेप में लाता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहता है और ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब हम आगे जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। सो गाइस, ये है हार्ट। ये हार्ट का डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें ये जो है राइट एट्रियम, वहाँ ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे वो एल्वियोलाई से वो यहाँ से ट्रांसफ़र वो पूरे यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ से जाके पूरे बॉडी तक जाएगा। वहाँ से सारा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करेगा और फिर वापस यहाँ पे जाएगा और यहाँ से फिर से जाएगा वहाँ लंग्स तक। लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करके यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा और ये पूरी सर्कुलेशन ऐसे कंप्लीट होती है। इसमें ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको एट्रियम और वेंट्रिकल्स, वो ऊपर का भाग जो है वो एट्रियम है और नीचे का भाग वेंट्रिकल। इसमें भी पार्टीशन है ऐसे 4, इसलिए हम कहते हैं हमारा जो ये हार्ट है वो 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर कौन सा? तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ये हमारे 4 चैम्बर्स है हार्ट के। ये पूरा ये हार्ट पंप करता है। वो पंपिंग के लिए एटीपी ज़रूरी होता है। एटीपी के कारण इसको एनर्जी मिलती है और एनर्जी के कारण ये हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण ये हार्ट ब्लड को पंप करता रहता है और हमारी पूरी बॉडी में ब्लड होता है। ये देखिए, ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर समझ लीजिए ये है बॉडी, ये है लंग्स, मतलब ये बॉडी की आर्टरीज है, वेन्स। ये वाली बॉडी की आर्टरीज और वेन्स है और ये वाली लंग्स की आर्टरीज और वेन्स है। यहाँ से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो वेन्स कैरी करके यहाँ पे राइट एट्रियम में ले जाते हैं। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और वहाँ से पूरा वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा, पूरी बॉडी में। फिर वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वहाँ से जाएगा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर वहाँ से जाएगा लंग्स तक। इसमें जो ये रेड वाला पोर्शन है वो डीऑक्सीजनेटेड है और ये वाला जो ब्लू पोर्शन है वो पूरा ऑक्सीजनेटेड है। सो अब हम आगे जाएंगे ब्लड वेसल्स क्या है? तो जो आर्टरीज और वेन्स है जो ब्लड को कैरी करते हैं उसे कहते हैं ब्लड वेसल्स।
ब्लड वेसल्स का बहुत माइनर डिफरेंट होता है, आर्टरीज और वेन्स के बीच में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। ये है आर्टरीज और ये है वेन्स। तो आर्टरीज का जो आउटर वॉल होता है वो थिन होता है, मतलब पतला, और ये जो वेन्स का है वो थिक होता है, मतलब मोटा। वो ऐसा क्यों होता है? तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड के अंदर ले जाता है, और उसके कारण वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। और जो वेन्स है वो उसके अंदर से वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट में जाता है, हार्ट से जाता है, वो कैरी होता है। और उसके अंदर बहुत सारा ब्लड का प्रेशर होता है, क्योंकि उसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करना होता है, इसलिए। तो वो अगर वेन्स अगर पतली हो गई तो वो फट सकती है और पूरे हमारे शरीर के अंदर ब्लड फैल सकता है, जिसके कारण कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। इसके कारण वेन्स थिक होती है और आर्टरीज थिन होती है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? तो ये समझो ये है एक ब्लड कैपिलरी, इसके अंदर ये है आरबीसी, ये है ये ब्लैक वाली है डब्ल्यूबीसी, और ये ग्रीन वाली है प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स होता है वो कोई भी, हम समझो जैसे कहीं पर भी माइनर कट हो जाता है तो रेड ब्लड सेल्स निकल जाएगा बाहर, वाइट ब्लड सेल्स भी बाहर निकल जाएगा, पर प्लेटलेट उस जगह को पकड़ के ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण रेड ब्लड सेल्स भी ना निकल पाए और वाइट ब्लड सेल्स भी ना निकल पाए। तो प्लेटलेट सिर्फ बाइंड करता है, जिसके कारण वो जो ब्लड लीक होता है वो स्टॉप हो जाए। आप देखते हो कि जो हमें कुछ लगा हो उसके ऊपर कुछ आप जो ब्लड होता है वो जब आप पोंछ लेते हो उसके बाद थोड़ी देर बाद आपका खून आना बंद हो जाता है और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर आ जाता है, वो होता है प्लेटलेट्स। लिम्फ भी एक टाइप का टिश्यू है। वो there is another type of fluid also involved in transportation. This is called lymph or tissue fluid. So lymph जो होता है वो वेन्स के साथ कनेक्टेड होता है, जैसे कि कैनल। तो जब भी ब्लड सेल्स होते हैं तो कुछ लिम्फ में भी चले जाते हैं और कुछ ऐसे ही आगे ट्रांसफ़र होते हैं। लिम्फ उसको अलग अलग डायरेक्शन में ले जाती है, और जब भी आपको कुछ भी कट हो तो वो लिम्फ में से बाहर निकलती है। अगर मानो आपके हैंड में कट हुआ ऐसे, तो वो वहाँ से जब भी ब्लड रिमूव होता है वो वहीं से होता है, तो प्लेटलेट उसको ब्लॉक कर देता है फिर से, और वो ब्लड
आना बंद हो जाता है, वो लिम्फ में से आता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसे होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, तो इस जब ये प्लांट है ये इसके पास ज़मीन के नीचे रूट्स होते हैं। वो रूट्स के अंदर एक पाइप जैसा होता है जिसको कहते हैं जाइलम। इसको कहते हैं जाइलम। वो वाटर को ट्रांसफ़र करता है रूट्स से लीफ तक। जो लीफ होता है उसके अंदर जाइलम, जो लीफ होता है उसके अंदर जाइलम वाटर प्रोवाइड करता है। लीफ के अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, वो CO2 प्रोड्यूस करता है। बाद में लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो उसके अंदर से सनलाइट प्रोवाइड करता है लीफ। तो अब लीफ के पास सब कुछ मटेरियल आ गया, जाइलम में से वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी ट्रांसफ़र हो गए और सब कुछ अब मटेरियल अब यहाँ पे लीफ पे आ गया। लीफ ने अब फूड बना दिया, तो अब वो फूड अंदर तो स्टोरेज करेगा नहीं, इसलिए वो हर जगह पे लीफ हर जगह पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग जगह पे उसको प्रोवाइड करेगा फूड। और वो फूड प्रोवाइड किससे होता है? जो ट्यूब वो प्रोवाइड करता है उस ट्यूब को कहते हैं फ्लोएम। वो फ्लोएम फूड ट्रांसफ़र करता है अलग अलग जगह पे लीफ से। सो ये था जाइलम और फ्लोएम जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है वो प्लांट्स के अंदर। एक्टिविटी 6.8 टेक्स 2 अप्रोक्सीमेटली सेम साइज। 2 पॉट्स लीजिए सेम साइज के, हैविंग सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, जिसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ सॉइल होते है। वो है वो सारा वेस्ट मटेरियल यूरिन और ब्लैडर तक कलेक्ट करता है। यहाँ पे वहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। तो बाहर निकलता है वो लिक्विड भी होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत टॉक्सिक चीज़ है। वो अमोनिया 3 प्रकार के होते हैं, एक अमोनिया, दूसरा अमोनिया और तीसरा अमोनिया। जो सबसे ज़्यादा होता है वो उसको पेस्ट के फॉर्म में होता है। वो जो टॉक्सिक सबसे ज़्यादा अमोनिया जिसमें होता है वो होती है फ़िश में। फ़िश के अंदर सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया होता है, वो यूरिन के थ्रू वाटर में ही रिलीज़ करती है। और उसके बाद जो उससे कम अमाउंट में थोड़ा अमोनिया है वो बर्ड्स के अंदर होता है, इसलिए वो एक्सक्रीट करते हैं, वो पेस्ट के फॉर्म में होता है। और जो सबसे लीस्ट अमाउंट में होता है अमोनिया वो हमारे अंदर होता है, इसलिए हमारा वो वाटर के फॉर्म में निकलता है।
तो ये था अमोनिया का डिफरेंस। सो गाइस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए मैं आपको इसका इजी वे आपको मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा। ये नेफ्रॉन के अंदर बोमेंस के ये जो बोमेंस कैप्सूल के ऊपर जो होता है, वहाँ से सारा वेस्ट मटेरियल ये बोमेंस कैप्सूल से सारा वेस्ट मटेरियल इस ट्यूब के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ये ट्यूब उसको पास करती है यहाँ से, फिर घूम के ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ से ये स्टिक होगा। ये ट्यूब इसको ऐसे ट्रांसफ़र करके या कलेक्टिंग डक्ट में ये जो है ये स्टैंडिंग स्टिक, उसको कलेक्टिंग ट्यूब कहते हैं। वो कलेक्टिंग ट्यूब से वो सारा वेस्ट मटेरियल निकालता है, और आगे एक कॉमन कलेक्टिंग ट्यूब होती है, उसके अंदर सारा वेस्ट ऐसे कि एक किडनी के अंदर सिर्फ एक नेफ्रॉन ऐसे नहीं होता, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ अमाउंट में ये नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर। इसलिए वो सारे के एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होता है। वो सारा कलेक्टिंग डक्ट ये जो आप देख रहे हैं वेना कावा और ये ओर्टा, इसके थ्रू पास करता है यूरिनरी ब्लैडर तक, और ये यूरिनरी ब्लैडर से वो फिर रिमूव होता है। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल किडनी? अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल किडनी, उसको हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। किडनी आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। Survival factors like infection, injuries, or restricted blood flow to kidney reduce the activity of kidney. This leads to accumulation of poisonous waste in the body, which can even lead to death. In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. An artificial kidney is a device to remove नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। ये आर्टिफिशियल किडनी जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो ब्लड के अंदर वो रिमूव कर देती है। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब, आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारी ट्यूब्स है, वो आर्टिफिशियल किडनी से कनेक्टेड होती है। वो ब्लड के अंदर से नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकाल देते हैं। ये जो फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन है वो अंदर जाता है, और यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट, और ये जो यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन है उसके अंदर यूरिया और एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट निकलता है। दिस फ्लूइड हैज़ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। इसके अंदर भी ब्लड के जो ब्लड पंप आउट होता है हार्ट से उतना ही प्रेशर होता है। The patient's blood is passed through this tube. During this passage, the waste products from the blood pass into dialysing fluid with diffusion. ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये ब्लड ये जो वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है। The purified blood is pumped back into the patient's. This is similar to the function of a kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. Normally, in a healthy adult, the initial filtrate in a kidney is about 180 liter daily. However, the volume of actually excreted is only a liter or 2 liter a day, because the remaining filter is reabsorbed in the kidney tubules. Excretion in plant. Plants use completely different strategies of excretion than those of animals. Oxygen itself can be thought of as a whole waste product generated during photosynthesis. We have discussed earlier how plants deal with oxygen
as well as CO2. CO2 can get rid of excess water by the transpiration. For other waste, plants use the fact that many of their tissue consist of dead cells and that they can even lose some part such as leaves. Many parts waste product are stored in the cellular vacuoles. ये जो प्लांट है वो तो हमारी तरह एक्सक्रीट नहीं कर पाते, तो वो एक्सक्रीट कैसे करते हैं, उनका वेस्ट मटेरियल क्या होता है, तो वो वाटर रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन कैसे रिलीज़ करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस होती है तब वो स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर भेज देते हैं। वो एक उनका वेस्ट प्रोडक्ट था। अब वाटर, तो आप जब भी सुबह उठे होगे तब आपने देखा होगा कि प्लांट्स के पत्तों पे पानी जैसा होता है और जो सॉइल होती है वो भी थोड़ी मॉइस्चर वाली होती है। तो ये इसी से ये प्लांट वो जब सुबह ये प्लांट वाटर रिलीज़ कर देता है, जिसको आप फॉग कहते हो, वो सब प्लांट रिलीज़ करता है। वो प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है और ये जो प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है वो जाइलम से निकलता है सॉइल पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। So our 6th chapter is completed. That's all for today. Thank you guys. If you like my video, please like, share and subscribe.